Dear students, welcome to again video lecture series on surveying. Now today we are going for lesson number 3 and that is about errors in linear measurement. दोस्तों इसके पहले लेक्चर में हमने देखा कि अलग अलग जो लीनियर मेजरमेंट्स के मेथड है, हाउ वी कैन मेजर द डिस्टेंस बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. सो पेराम्बुलेटर, पेसोमीटर, पासोमीटर, स्पीडोमीटर और बाय लेग, like that by distomat, the different instrument we have seen, and then we have seen that what are the various instrument for chain survey. Then also we have seen the different types of chains are there. Metric chain generally 20 और 30 मीटर की होती है हमारी. Then we have seen engineer's chain that is 100 feet. Then we have seen that Guntur chain that is 66 feet long, and there is revenue chain which is 33 feet long. So these different chains are there, and we have seen that this type of chain having the handle and there are links are there and they are connected by the rings, and there are at every 1 meter the brass rings are there, and at every 5 meter the brass tally with 1 end, 2 end and 3 end. Like this chain we are using. फिर हमने देखा कि we have to use the plumb bob, then we have to use the wooden peg, लकड़ी की खुटिया हथौड़ी से ठोक के आपको पॉइंट फिक्स करने पड़ेंगे. एंड देन ऑल्सो वी हैव टू यूज द रेंजिंग रॉड, जो हमारे लोहे के जो पोल है हमारे 3 मीटर 10 फुट वाले, सो दैट रेंजिंग रॉड हम लोग अलग अलग रख के, देन वी हैव सीन द रेंजिंग ऑल्सो. तो अलग अलग रेंजिंग रॉड ग्राउंड में रखने के बाद में एक रेंजिंग रॉड के पीछे खड़ा रहने के बाद वो सब रेंजिंग रॉड को देख के उनको आगे पीछे सरका के एक लाइन में करना, दैट प्रोसीजर वी हैव सीन दैट इट इज द रेंजिंग बाय आई. सो ब्रिंगिंग ऑल द रेंजिंग रॉड इन पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन by focusing with the eye, and that simple procedure is called as ranging by eye. So there are two kinds of ranging. Already we have seen direct ranging and indirect ranging, and also into that we have seen the what is the use of line ranger. So in that way हम लोग कोई भी फील्ड में यदि सर्वे करना है तो सबसे पहले हम लोग एक सर्वे की लाइन तय करने की कोशिश करेंगे. So now for that survey line we require the point at every 30 meter interval, because our chain length is metric chain that is 30 meter. और यदि टेप इस्तेमाल करते हैं तो 30 मीटर का टेप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे हर 30 मीटर पे एक रेंजिंग रॉड चाहिए. सो ऐसा चाहिए कि वो सब स्ट्रेट एक लाइन में होने चाहिए ताकि मैं स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस चेन से गिन सकूं. सो फॉर दैट पर्पज वी आर फिक्सिंग द पेग एट द एंड स्टेशन एंड देन प्लेसिंग द रेंजिंग रॉड, एंड देन intermediate ranging rods, they are adjusted to and fro so that the person watching from the first ranging rod side will bring all the ranging rod in a straight line. So bringing all the ranging rod, that procedure we have done. तो हमें अपने अलग अलग सर्वे लाइन्स के लिए अब लंबाई गिननी है. So that is very easy now. Then by use of the chain we can use you can measure the distance. But there are some chances of errors are there. Already in first unit also we have seen there are chances of error. So what are the errors in this lesson? We will learn types of errors, compensating error versus cumulative error, then how the error adjustment is done, and then problems on the chain correction we will solve. So we will proceed one by one for this lesson. So errors in the measurement, when we talk about in the linear measurement, 3 टाइप की एरर हमारी आ सकती है. सो फर्स्ट इज पर्सनल एरर, सेकंड इज कंपेंसेटिंग एरर, एंड थर्ड इज क्यूमुलेटिव एरर. सो ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इन फर्स्ट यूनिट ऑल्सो वी हैव सीन ब्रीफ. सो पर्सनल एरर, दे आर बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स बाय द पर्सन और एक्यूरेसी और प्रोसीजर एडॉप्टेड फॉर द ऑपरेशन, पर्टिकुलर सर्वे ऑपरेशन, बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल एरर ऑकर्स. एंड देन ऑल्सो वी हैव सीन कंपेंसेटिंग एंड cumulative errors. So we will go into now details of all these things. So first of all, the personal error in the linear measurement, they occur because of the mistakes done by the surveyor or the helper or the engineer or the person who is involved in the field operation. फील्ड में जब सर्वे हम लोग कर रहे तब हमारे से कई गलतियां हो सकती है, and because of that in the distance measurement, in the linear measurement, there are some errors occurs. Now what are that? So first is the displacement of the arrow. अब जब मैं यहाँ पे मार्किंग करते जाऊंगा, so what is general procedure is that I will mark
one point in the ground, and suppose this is my first point and this is my last point. So in between I will fix some of the points at 30-meter interval. Now whatever the marking was there, while making the marking, क्रॉस मार्किंग बाय द लाइम पाउडर, चूने से मैं यदि यहाँ पे मार्किंग करता हूँ उस समय, या फिर मुझे ऐसा चेन पकड़ने के बाद में चेन के पास में 30 मीटर जहाँ पे हो गया वहाँ पे ऐसा लोहे के एरो से ऐसा मार्किंग करते समय थोड़ी सी गलती हो गई, यानी एरो से जहाँ एग्जैक्ट मार्किंग मैंने करना चाहिए था वहाँ से 1 सेंटीमीटर मैंने पहले मार्किंग कर दिया. सो दिस वाज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरो. तो आपका एरर 1 सेंटीमीटर की एरर आई जाएगी आपके मेजरमेंट में. सो दैट वाज वन ऑफ द पर्सनल एरर. देन फॉरगॉटिंग द नंबर ऑफ चेन्स काउंटेड, दिस इज ऑल्सो द कॉमन मिस्टेक. अभी एक लंबा रास्ता मुझे गिनना है, 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मैं 30-30 मीटर के चेन से गिन रहा हूँ. तो आई एम मेजरिंग, मैं मन के मन में फिर चेन को गिनूंगा कि मेरी 1 चेन हो गई, 2 चेन हो गई, 3 चेन हो गई, 4 चेन हो गई. ऐसा करते करते एक आधे बार मेरा ध्यान गलत हो सकता है और मैं एक आधे बार 17 चेन हो गई फिर 18 चेन बोलने का भूल जाता हूँ और फिर से 17 चेन से शुरू करता हूँ. सो ऐसा भी हो सकता है. तो एक चेन का डिस्टेंस ही मेरा पूरा गायब हो जाएगा. सो दैट मे बी द chances of error. So that personal error may be because of the forgetting of the number of chains counted. Then wrong end of the chain is used. Sometimes it happens that चेन के अंदर हमने देखा कि भाई चेन के अंदर यहाँ से शुरू करने के बाद में एक टैली लगी होती है 5 मीटर की, फिर 2 पॉइंट वाली टैली लगी होती है 10 मीटर पे, फिर 3 पॉइंट वाली टैली लगी होती है 15 मीटर पे, फिर उधर से 10 मीटर पे 2 पॉइंट वाली टैली और उधर से 1 मीटर पे, ऐसी करके चेन हमारी रहती है. तो इधर से जब मैं यहाँ से 20 मीटर का डिस्टेंस गिनता हूँ तो वो इधर के एंड से 10 मीटर रहेगा. ऑफकोर्स 30 मीटर की यदि चेन है तो कभी कभी मेरा गलत एज्यूम्शन हो जाता है कि इधर से मेरा 5-5 मीटर के 4 हिस्से है और इधर 5-5 मीटर के 2 हिस्से. तो जो 2 पॉइंट वाली टैली है वहाँ पे मैं गलती से 10 मीटर बोल दूंगा, हालांकि एक्चुअली वहाँ पे 20 मीटर हो सकता है. सो दिस चांस में ऑकर दैट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एंड ऑफ द चेन इज यूज. और जब मैं ब्रास के रिंग देख के जो 1-1 मीटर गिनता हूँ तो इधर से 17 मीटर भरेगा तो इधर से 13 मीटर भरेगा. तो गलती से मैं, ऐसा भी हो सकता है कि इधर से मैं 17 पे गिनना चाहिए था मैंने, लेकिन मैंने उसको गलती से गलत एंड से गिन लिया. सो दैट मे हैपन. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो देर आर चांसेस ऑफ पर्सनल एरर इन द लीनियर मेजरमेंट. देन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ 6 इंस्टेड ऑफ 9, कभी कभी हम लोग यदि टेप से यदि गिन रहे हैं समझ लो, तो टेप को देखने में हम लोग घाई कर दे रहे कभी कभी, तो 6 का आंकड़ा अपने को 9 दिखता है. सो लाइक वे ऑल्सो देयर आर सम चांसेस आर देयर बिकॉज ऑफ दैट वॉट एवर द ऑब्जर्वेशन वी टेक फ्रॉम द टेप और फ्रॉम द चेन, सो देयर आर सम चांसेस ऑफ एरर. देन रॉन्ग कॉलिंग ऑफ द नंबर. अभी किसी ने समझ लो डिस्टेंस गिना और उसको मैंने फिर नोट डाउन करने वाला दूसरा एक व्यक्ति है सर्वे करते समय. सो ही विल आस्क दैट कितना हो गया डिस्टेंस, तो वो बोलेगा 50 मीटर. अब वो 15 है कि 50 है, ये यदि बोलने वाले ने और सुनने वाले ने यदि गलती कर लिया तो ऑब्जर्वेशन नोटबुक पे लिखते समय गलती से रीडिंग गलत हो जाएगा. यानी 50 मीटर को अपन गलती से 15 मीटर लिख देंगे या फिर 15 मीटर को हम लोग 50 मीटर लिख देंगे. सो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े बोलते समय आपको थोड़ी सी केयर रखना पड़ता है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 10 नो प्रॉब्लम, बट व्हेन यू आर टॉकिंग 20 नो प्रॉब्लम, बट व्हेन वी आर टॉकिंग 30 तो 13 है कि 30 है, 14 है कि 40 है. सो लाइक वे इन द कॉलिंग ऑल्सो while writing the observation on the notebook there are chances of personal errors are there. And then carelessness while writing the 254 और 245. कभी कभी ऐसे बड़े बड़े डिस्टेंस लिखते समय आगे पीछे हो गया, यहाँ पर 4 और 5 आगे पीछे हो गया. सो बोला मैंने 254, लिखते समय 245 लिख दिया मैंने गलती से. सो दिस टाइप ऑफ एरर्स मे ऑकर, दिस आर द चांसेस. सो ऑल while you are doing in the survey you have to remember that this type of errors we should avoid so that there are no personal errors in our observation. तो लीनियर मेजरमेंट गिनते समय आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, there should not be any personal error occurs because of all these reasons are there. Now similarly with this type of errors,
द प्रिकॉशंस अगेंस्ट द एरर एंड द मिस्टेक्स, क्या करेंगे हम लोग फिर? वी हैव टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ पर्सनल एरर. सो पॉइंट मार्क विद द क्रॉस मार्क. सो दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि यदि कोई भी स्टेशन पॉइंट फिक्स कर रहे हैं तो हमको बराबर चूने से बराबर मार्किंग करके उसके सेंटर में ही बराबर एरो हमारा जो है वो लगाना चाहिए. सो दैट फर्स्ट केयर वी हैव टू टेक. देन यूज द जीरो एंड टू स्टार्ट. सो ऑलवेज जब भी चेन से गिन रहे हैं हम लोग तो स्टार्ट वाला एंड किधर से है हमारा, सर्वे हम लोग इधर से इधर कर रहे हैं कि इधर से इधर कर रहे हैं, ये हमको परफेक्ट मालूम होना चाहिए. सो दैट वी हैव टू यूज सो दैट यू कैन अवॉइड द पर्सनल एरर. देन काउंट नंबर ऑफ एरो यूज. अब यहां पे नंबर ऑफ एरो यूज यदि काउंट किया आपने तो नंबर ऑफ चेन कितनी हो गई आपकी, ये आप बराबर तय कर सकते हैं. जनरली चेन सर्वे से जब हम लोग डिस्टेंस गिनते तो क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग यहां पर पेग फिक्स कर देते पहला स्टेशन पे. फिर यहां से आपकी एक चेन हो गई यहां पे, तो यहां पर आप एक एरो खड़ा कर देते जमीन के अंदर. फिर दूसरी चेन हो गई आपकी, फिर यहां पर एक एरो खड़ा कर देते. फिर तीसरी चेन हो गई, फिर एक एरो खड़ा कर देते. देन फिर चौथी चेन, फिर एरो खड़ा कर देते हम लोग. लाइक वे हर एक 30-30 मीटर पे हम लोग यहाँ पर जमीन के अंदर एरो हमारा गाड़ दे रहे. तो पेक तो आपकी यहाँ पे लगी वाली है स्टार्ट पॉइंट पे, लेकिन बाकी जगह पे एरो कर दिया आपने. तो इसके अंदर यहाँ पे जब चेन सर्वे करते हम लोग या चेन से जब डिस्टेंस गिनते गिनते हम लोग जा रहे तो एक व्यक्ति पीछे रहेगा, एक व्यक्ति सामने रहेगा, वो चेन को हर बार सामने खींचेगा बराबर. सो लाइक वे देयर आर 2 पर्सन्स आर देयर. सो वन इज प्रेसिडिंग पर्सन, सामने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति चेन को खींचेगा, और दूसरा रहता है उसका फॉलोअर. तो जो फॉलोअर है यानी पीछे वाला, तो जब यहाँ से यहाँ तक चेन का गिनना हो गया तो फिर ये चेन मैं खींच के यहाँ तक लेके जाऊँगा और फिर ये चेन गिनूंगा. तो ये जो यहाँ का पर्सन है फॉलोअर पर्सन, वो क्या करेगा, ये वाला जो एरो है उसको उखाड़ लेगा, तो उसके पास में एक एरो जमा हो जाएगा. फिर ये प्रेसिडिंग वाला जो पर्सन है, आगे का पर्सन, चेन को आगे खींचेगा, यहाँ तक लेकर आएगा, तो फिर ये वाला भी एरो वो फॉलोअर उठा लेगा हाथ में. तो पीछे वाला जो व्यक्ति है चेन के पीछे जाने वाला, उसके हाथ में 2 एरो हो जाएंगे. सो लाइक वे यदि आप आगे आगे चेन को खींचते खींचते डिस्टेंस गिनते जा रहे हो तो जो फॉलोअर है वो फॉलोअर पर्सन यहाँ के जो एरो आपने फिक्स किए थे उसको आप जमा करते जा रहे हैं. तो जितने एरो हो गए आपके पास में उतना डिस्टेंस आपका हो गया. यानी आपके पास में यहाँ पे हाथ में 2 एरो है, इसका मतलब 2 चेन का डिस्टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 30 और 30 60 मीटर का. तो आगे आगे के जैसा आप यदि काउंट करते एरो, सो देन देर आर नो चांसेस दैट you will forget the number of chains. So that procedure we have to adopt to avoid the personal error. Then read from the tally. चेन से आपको चेन की लिंक गिनने के बजाय जो टैली रहती है 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर की, उसको पहले गिनो, उसके बाद में फिर उसके बाद की जो रिंग है राउंड वाली उसको गिनो आप, तो आपके चांसेस कम होंगे. देन कॉल द रीडिंग लाउडली एंड क्लियरली. जब हम लोग ऑब्जर्वेशन लिखने वाले व्यक्ति को जो हमारा रीडिंग बता रहे हैं फील्ड में, तो आपको बराबर क्लियरली बताना चाहिए. और जब आप ऐसा नंबर बता रहे कोई भी, सो यू शुड राइट डाउन 254 254 ऐसा आपने बोलना चाहिए. सो लाइक वे देर आर नो चांसेस ऑफ पर्सनल एरर्स और मिस्टेक्स में बी देयर. देन अवॉइड द विंड टेपिंग. जब भी हवा चल रही होंगी तो उस समय आप टेप से डिस्टेंस नहीं गिनेंगे, क्योंकि आपका टेप हवा से फड़फड़ाएगा और ऐसा सैगिंग हो जाएगा उसके अंदर, हॉरिजॉन्टल सैगिंग. सो दैट ऑल्सो वी हैव टू अवॉइड फॉर अवॉइडिंग द पर्सनल मिस्टेक्स. यूज द प्रॉपर स्टेपिंग ऑन द स्लोप, सो दैट विल ऑल्सो वी विल सी. अब आपको चेन सर्वे से आप जब डिस्टेंस गिनने ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड आपका ऐसा स्लोप में, तो आपको ग्राउंड के ऊपर स्लोपिंग डिस्टेंस गिनते समय आपको उसके अंदर करेक्शन लगाना पड़ेगा. सो यू हैव टू ऑल्सो मेजर द स्लोप ऑफ द ग्राउंड, और अदरवाइज आपको चेन हॉरिजॉन्टल पकड़नी पड़ेगी. समझ लो यहां पर आपका ग्राउंड ऐसा थोड़ा सा स्लोपिंग है, लेकिन आपको चेन से डिस्टेंस गिनते समय आपको चेन ऐसी हॉरिजॉन्टल पकड़नी पड़ेगी बराबर. तो आपको यहाँ पे चेन हॉरिजॉन्टल पकड़ना है, लेकिन आपका ग्राउंड स्लोपिंग में है. सो तो हॉरिजॉन्टल तो चेन हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि चेन ऐसी लपकेगी आपकी. तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ग्राउंड का स्लोप आपका कितना है, वो स्लोप भी आपको मेजर करना पड़ेगा, ताकि प्रॉपर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग करेक्टली कैलकुलेट कर सकें. लेटर ऑन वी विल सी how the chaining on sloping ground is done. So that also we have to remember. Then alignment should be followed correctly. Alignment का मैंने आपको बताया, alignment का मतलब होता है कि जो आपकी सेंटर लाइन है किसी भी रोड की बोलो या किसी भी कैनाल की,
या फिर किसी भी सर्वे के लिए जो एग्जैक्ट लाइन है आपकी, दैट सेंटर लाइन, एग्जैक्ट सेंटर लाइन, दैट इज कॉल्ड एज अलाइनमेंट. अब नाउ इन दिस अलाइनमेंट वी हैव टू रिमेंबर दैट. So here we will see that how this alignment is understood. Now I will draw in the top view. Top view में मैं अभी ऐसा मेरी एक straight line मैं यहाँ पर बना रहा हूँ. So this is my straight alignment actually. So here I have to fix one ranging rod, here one ranging rod, and at 30 meter interval there are so many number of ranging rods may be there. अब ये मेरी straight alignment है, लेकिन मैं जब measurement करूँगा तो मेजरमेंट करते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मेजरमेंट करते समय यहाँ से 30 मीटर थोड़ा ऐसा गिना मैंने, फिर 30 मीटर इधर गिन लिया, फिर 30 मीटर ऐसा गिन लिया, फिर 30 मीटर ऐसा गिन लिया, फिर 30 मीटर ऐसा गिन लिया. सो एवरी टाइम इफ यू वॉच इन द टॉप व्यू, ये आपकी चेन ऐसी स्ट्रेट लाइन में नहीं है. सो दिस इज देयर इज ए चांसेस ऑफ एरर इन यूर डिस्टेंस मेजरमेंट. यहाँ पे आपकी अलाइनमेंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आ गई. सो फर्स्ट यू हैव टू डू द रेंजिंग. रेंजिंग करके आपको ये जो पॉइंट है आपके एग्जैक्टली ये मार्क कर लेने चाहिए पहले 30-30 मीटर पे, और फिर बराबर पॉइंट टू पॉइंट चेन पकड़ के डिस्टेंस आपने गिनना चाहिए, ताकि रेंजिंग आपका यदि सही रहा तो आपका स्ट्रेट अलाइनमेंट बराबर कायम रहेगी और उसके ऊपर आप सर्वे लाइन का डिस्टेंस बराबर गिन सकते हो. और यदि ऐसा नहीं रहा तो आपका ऐसा आड़ा तिरछा दाना चालू हो जाएगा डिस्टेंस गिनना. आप डिस्टेंस तो गिनेंगे आप, बट देयर इज ए मिस्टेक इन यूर डिस्टेंस. So that way also alignment should be followed correctly, that you have to remember. Then do not suspend the chain or the tape. Already I have said you, whenever there is a undulation ground, तो चेन जो है वो आपको ऐसी स्ट्रेट रखनी चाहिए, ऐसी लटकन में नहीं पकड़नी चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है वो एक्चुअल में. So then we have to apply the correction, but that way always you have to remember that chain or tape should be horizontal, because we are measuring the linear distance horizontally. So that is the precaution we have to take, and the proper pull should be applied. Now that also should be there. अब आप चेन है, चेन के अंदर अलग अलग लिंक्स है और अलग अलग ऐसे रिंग है. अब वो चेन को आप स्ट्रेट खींच के रखेंगे तो बराबर लंबाई उसकी 30 मीटर भरेगी, और आपने उसको थोड़ा सा लूज छोड़ दिया तो हर एक रिंग जो है वो थोड़ी थोड़ी एक में कम होने की वजह से लंबाई आपकी कम भरेगी. तो जो स्टैंडर्ड पुल होता है, कितना आपको स्ट्रेच करना है उतना ही स्ट्रेच आपको बराबर चेन को पकड़ना पड़ेगा जमीन के ऊपर, तो आपका डिस्टेंस करेक्ट आएगा. इफ देयर इज नॉट प्रॉपर पुल, देन यू हैव टू अप्लाई द पुल करेक्शन ऑल्सो. बिकॉज ऑफ द पुल ऑल्सो देयर मे बी द चांस ऑफ एरर. सो टू अवॉइड द पर्सनल मिस्टेक्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग while measuring the linear distance with the help of chain. Chain सर्वे से आपको ये सारी चीज़ें we have to remember. Now when we are performing all this operation, so there are errors occurs. हम लोग 100% तो एरर को अवॉइड कर ही नहीं सकते. कोई ऐसा गारंटी नहीं दे सकता है कि भाई मेरी एरर आएंगी ही नहीं करके. सो ऑलवेज देयर आर चांसेस ऑफ एरर. सो इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन हमारे पास में एक ही रास्ता है कि जो एरर आई वो किस कारण से आई, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट एरर, एंड हाउ वी कैन एलिमिनेट दैट रीजन. सो वन इज यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट द एरर, और अदर इज you have to calculate that error because of the whatever the issue it was occurred, and then you can apply the correction in the measured observation. तो एरर एलिमिनेट करने के लिए आपको एक तो एरर आना ही नहीं चाहिए, इसके लिए काम करना पड़ेगा. सो यू हैव टू अवॉइड द मिस्टेक्स, you have to take the precaution, and even though there are some error, then we need to calculate them, and then we have to apply the correction of opposite sign into that measured distance. Then you can eliminate the error. So for that purpose we have to understand the nature of error occur. सारा प्रिकॉशन आपने ले लिया एरर अवॉइड करने के लिए, आपने जो मिस्टेक्स है वो भी आने नहीं दिया, आपने इंस्ट्रूमेंट का भी एडजस्टमेंट सेटिंग बराबर कर लिया है, फिर भी आपकी एरर आ सकती है. So we have to understand how we can calculate that, and then how we can apply the correction for that. So here there is a one error already we have seen, that is compensating error. यानी सभी प्रकार का करेक्शन अप्लाई करने के बाद में भी आपके ऑब्जर्वेशन में जो थोड़ी सी एरर रह जाएंगी, दैट एरर इज कंपेंसेटिंग एरर. सो दिस कंपेंसेटिंग एरर ऑकर्स इन द बोथ डायरेक्शन. यानी
कंपेंसेटिंग एरर आपकी कभी कभी प्लस रहती है, कभी कभी माइनस रहती है, यानी कभी डिस्टेंस ज़्यादा भरेगा, कभी डिस्टेंस कम भरेगा, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट जो है इसका नॉट अफेक्ट द रिजल्ट सीरियसली। इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है, ये ओवरऑल इफेक्ट आपका कम रहने वाला है। सो ऑलरेडी वी हैव सीन कंपेंसेटिंग एरर फॉलोज द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कंपेंसेटिंग एरर उसके वजह से आपको ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, सो इट इज नॉट मच सीरियसली अफेक्ट द रिजल्ट। देन इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ द चेन की वजह से ये आ सकता है। चेन के रिंग आपने लूज लूज पकड़े, उसको स्लोपिंग में पकड़ा, कभी थोड़ा ज़्यादा पुल दिया, कभी कम पुल दिया, कभी अलाइनमेंट स्ट्रेट रखी, कभी नहीं रखी। सो लाइक वे द इनकरेक्ट होल्डिंग ऑफ द चेन, उसके वजह से आपकी कंपेंसेटिंग एरर आ सकती है। यानी कभी एरर आपकी ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा भरेगा, कभी कम भरेगा, यानी एरर पॉजिटिव रहेगी, कभी निगेटिव रहेगी, ओवरऑल इफेक्ट उसका कम रहेगा, बट दैट वे। देन करेक्ट स्टेपिंग इज नॉट डन, दैट इज ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमने स्लोपिंग ग्राउंड के ऊपर यदि हम लोग डिस्टेंस गिन रहे हैं, तो वहां पे आपको जैसा ऐसा ऐसा स्लोपिंग ग्राउंड है हमारा, यहाँ पे समझ लो, सो ग्राउंड इज स्लोपिंग लाइक दिस। तो आपको चेन पहले यहाँ से हॉरिजॉन्टल पकड़ के, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल, और फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल। तो जैसा जैसा स्लोप है उसके हिसाब से आपको हर बार हॉरिजॉन्टल ही डिस्टेंस गिनना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, और टोटल ऐड करके हम लोग टोटल डिस्टेंस फिर गिन सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेपिंग। यानी चेन इतने डिस्टेंस के लिए पकड़ी आपने, फिर यहाँ से यहाँ तक पकड़ी, जहाँ तक आप हॉरिजॉन्टल पकड़ सकते हो उसको, उतने उतने दूरी के लिए करेक्ट डिस्टेंस का स्टेपिंग करके आप कर सकते। यदि ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, सो देन देयर इज चांसेस ऑफ कंपेंसेटिंग एरर। देन फ्रैक्शनल पार्ट आर नॉट करेक्ट। अब हमारी जो चेन है, चेन से हम लोग जब डिस्टेंस गिनेंगे तो चेन के अंदर हमारी ऐसी एक लिंक होती है एक, और उसके अंदर फिर एक रिंग, और फिर यहाँ से ये आगे की लिंक होती है। अब ये जो रिंग है और यहाँ की जो आगे की रिंग है, लाइक वे, अब ये जो रिंग है, ये रिंग हमारी होती है 30 सेंटीमीटर की बराबर, यानी ये बीच के रिंग से लेके बीच के रिंग तक 30 सेंटीमीटर है। तो अब इतना डिस्टेंस यदि हो गया तो आपको इसको 15 सेंटीमीटर लेना चाहिए, या फिर इतना हो गया तो इधर से 5 सेंटीमीटर या इधर से 20 सेंटीमीटर लेना चाहिए, इतना हो गया तो इधर से 7.5 सेंटीमीटर। सो लाइक वे, बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, कहाँ तक मार्किंग है आपका, उसके हिसाब से आप ये लिंक के ऊपर से भी फ्रैक्शनल में डिस्टेंस गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 15 के बजाय हो सकता है एक्चुअल में 14 हो, वहाँ पे यहाँ पे 7.5 के बजाय यहाँ पर 9 सेंटीमीटर हो यहाँ पर डिस्टेंस। सो दैट वे द प्रॉब्लम मे बी देयर इन द फ्रैक्शनल पार्ट। सो उसको यदि आपने करेक्टली मेजर नहीं किया, सो देयर में भी चांसेस ऑकर, तो कंपेंसेटिंग एरर आ सकती है उसके वजह से। एंड देन इनएक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट डायरेक्शन, यानी इधर से मैं 20 मीटर बोलने के बजाय मैंने इधर से उसको 10 मीटर समझ के गिन लिया। सो लाइक वे ऑल्सो समटाइम्स देयर आर चांसेस ऑफ एरर। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस वॉट एवर द एरर ऑकर्स, दैट इज इन बोथ डायरेक्शन, यानी वो एरर कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव होती है, और उसके वजह से ओवरऑल रिजल्ट उसका ज़्यादा इफेक्ट सीरियसली नहीं होता है। सो दिस टाइप ऑफ एरर इट इज कॉल्ड एज कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग का मतलब वो एक में को एडजस्ट करते जाती, कभी डिस्टेंस कम हो जाता, कभी बढ़ जाता, कभी कम हो जाता, कभी बढ़ जाता, कभी कम हो जाता, कभी बढ़ जाता, और ऐसा करते करते पूरे टोटल डिस्टेंस के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा एरर नहीं आती। सो दैट एरर इज बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन दैट वी हैव सीन, एंड दैट इज कॉल्ड एज compensating error. Now, as compared to this compensating error, there is cumulative error also. Cumulative का मतलब है हर बार एरर बढ़ते जा रही है। So the error is increasing every time. गलती हो गई या जो भी आपका रीजन है उसके वजह से एरर आ गई, तो आपके डिस्टेंस के अंदर एरर बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी। या फिर निगेटिव एरर रहेगी तो हर बार आपका डिस्टेंस कम बढ़ते जाएगा, हर बार कम बढ़ते जाएगा। सो दैट सिचुएशन में ऑकर, सो देयरफॉर द एरर ऑकर्स इन द सेम डायरेक्शन। तो हर बार आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव एरर ही आती जाएगी, या हर बार निगेटिव निगेटिव एरर आती जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस गिनते समय आपका टोटल डिस्टेंस के अंदर ऑब्जर्वेशन में गलती आ जाएंगी एकदम से, एंड देयरफॉर द फाइनल एरर टेंड टू एक्यूमुलेट, एंड बिकॉज इट अफेक्ट्स द रिजल्ट सीरियसली। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो एकदम उसमें ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा।
यानी हर चेन गिनते समय 30 मीटर के बजाय मेरा डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा हर बार कम भर रहा है, तो हर बार कम भरते जाएगा, हर बार कम भरते जाएगा, हर बार कम भरते जाएगा, तो मेरा ओवरऑल डिस्टेंस में एकदम फर्क पड़ जाएगा. सो लाइक वे द error occur in the same direction and it is accumulating every time, with every operation, and because of that it affects the result seriously, and this type of error they are called as cumulative error, यानी बढ़ते जाने वाली गलतियां. So here it may positive cumulative error or it may negative cumulative error. अब ये एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर निगेटिव भी हो सकती है. So here we can say that when this is LM is measured length is greater than actual length, यानी जो मेजर डिस्टेंस है मेरा, सो मेजर्ड डिस्टेंस इसको हम लोग बोलेंगे LM, ये जो है हमारा ये ग्रेटर रहेगा एक्चुअल डिस्टेंस से. So that is LA, एक्चुअल लेंथ इज LA और मेजर डिस्टेंस है हमारा LM, तो ज्यादा भर गया हमारा डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा हमारा डिस्टेंस भर गया. सो इन दिस केस द पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर ऑकर्स. सो दैट वी हैव टू रिमेंबर LM इज ग्रेटर देन LA, तो पॉजिटिव एरर है हमारी. और हमारा मेजर डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल से कम भर गया, यानी एक्चुअल डिस्टेंस था मेरा 110 और वो 109.8 भर गया. इसका मतलब निगेटिव क्यूमुलेटिव एरर आ गई उसके अंदर. एरर आई लेकिन निगेटिव क्यूमुलेटिव वाली आई. सो देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर और निगेटिव क्यूमुलेटिव एरर. सो दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर. सो व्हेन वी से दैट द क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर इज देयर, यानी मेजर्ड लेंथ हमारी एक्चुअल लेंथ से ज्यादा आ रही है. जो मेजर्ड किया मैंने डिस्टेंस चेन से वो मेरा ज्यादा भर रहा है, जबकि एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो कम है. सो मीन्स देयर इज एरर एंड दैट एरर इज पॉजिटिव क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर. सो लेंथ ऑफ द चेन इज शॉर्टर देन स्टैंडर्ड, दिस इज द वन ऑफ द रीजन. पहला रीजन क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द चेन इज शॉर्ट देन द स्टैंडर्ड. अब स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है हमारी चेन की, सो वी नो दैट द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन इज 30 मीटर. यदि हमने ऐसा एक स्ट्रेट सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर बिल्कुल चेन को सीधा टाइट किया और उसको स्टैंडर्ड पुल अप्लाई किया और चेन की लेंथ यदि हमने दूसरा मेजरमेंट का टेप लगा के, स्टील टेप लगा के गिनी, तो बराबर 30 मीटर भरना चाहिए. तो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन इज 30 मीटर. तो हम तो चेन से 30 मीटर का ही एक चेन हो गई तो 30 मीटर बोलेंगे हम लोग. सो लाइक वे वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस, बट वाइल डूइंग ऑल दिस थिंग्स, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी चेन है उसकी लंबाई फॉर एग्जांपल 29.79 है. एक्चुअली यदि हमने ऐसा गिन के देखा ना तो ये कम भर रही, इसका मतलब इसके अंदर एरर है. लेकिन हम लोग इतना डिस्टेंस गिनेंगे और उसको बोलेंगे 30 मीटर. सो बिकॉज द चेन लेंथ इज शॉर्टर देन स्टैंडर्ड, सो उसके वजह से भी हमारी पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर आती है. देन द स्लोप करेक्शन इज नॉट अप्लाइड, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आपका मेजर डिस्टेंस ज्यादा भरेगा, मेजर डिस्टेंस ज्यादा भरेगा. यानी ऐसा स्लोप पे आप गिन रहे, एक्चुअली आपको ये ओरिजेंटल डिस्टेंस गिनना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा तिरछा वाला स्लोपिंग डिस्टेंस गिना, सो दैट इज मेजर डिस्टेंस. तो एक्चुअल डिस्टेंस से हमारा मेजर डिस्टेंस ज्यादा भरेगा. सो देन बिकॉज ऑफ दैट क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर ऑकर्स. देन सैग करेक्शन इज नॉट अप्लाइड. सैग करेक्शन मीन्स एक्चुअली जब व्हेन वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस, हमने चेन हॉरिजॉन्टल पकड़नी चाहिए थी, लेकिन हमारी चेन हमने ऐसी स्लोपिंग में पकड़ी. तो स्लोपिंग में पकड़ने की वजह से आपकी चेन यहीं तक पुरेगी, फिर इतना डिस्टेंस और आपको गिनना पड़ेगा थोड़ा सा. यानी आपका मेजर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा भर रहा है, मेजर डिस्टेंस ज़्यादा भर रहा है, बिकॉज देयर इज ए सैग इन द चेन. तो चेन यदि ऐसी लटकन में पकड़ी गई तो आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो ज़्यादा गिनेंगे आप, एक्चुअल में वो डिस्टेंस कम होगा. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो देयर इज ए करेक्शन एरर, दैट इज क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर. देन फॉल्टी अलाइनमेंट इज यूज. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यदि हम लोग टॉप व्यू में यदि सोच रहे हैं, सो
वेन एवर वी आर मेजरिंग, तो आपको स्ट्रेट अलाइनमेंट आनी चाहिए, हर 30-30 मीटर के ऊपर आपके बराबर एग्जैक्ट पॉइंट होने चाहिए, एंड देन यू कैन मेजर। लेकिन ये इसके अंदर टॉप व्यू में यदि ऐसा ऐसा हो गया थोड़ा सा, सो अलाइनमेंट इज नॉट स्ट्रेट, अलाइनमेंट इज नॉट स्ट्रेट, तो इसमें क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस जितना भी है उससे मेजर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा भरेगा, मेजर डिस्टेंस, क्योंकि आप ऐसा तीजा तीजा जा रहे हैं ना, ऐसा ऐसा जा रहे हैं ना, सीधा नहीं जा रहे। जब सीधा जाएंगे तो एक्चुअल डिस्टेंस गिना जाएगा आपका, लेकिन आप अलाइनमेंट में नहीं जा रहे बराबर। सो बिकॉज ऑफ द रेंजिंग आपने सीधा नहीं किया, स्ट्रेट रेंजिंग इज नॉट देयर, सो बिकॉज ऑफ द फॉल्टी अलाइनमेंट ऑल्सो आपका जो मेजर डिस्टेंस है वो ज़्यादा भरने वाला है। सो देयर फॉर क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर ऑकर्स, एंड हाई विंड, टेप सब पकड़ रहे समझ लो, या कभी कभी चेन को भी हवा के वजह से आपकी जो चेन है, टॉप व्यू में आपकी चेन बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट पकड़ी जानी चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसी बहरी जाएगी। ये टॉप व्यू में बता रहा हूं मैं आपको, वो ऐसी ऐसी इधर हवा के वजह से एक तरफ से ऐसी कर्व हो जाएगी। सो दैट में ऑल्सो अकर, और टेप से भी यदि गिनेंगे हम लोग, सो विद द हेल्प ऑफ टेप ऑल्सो, हवा के वजह से टेप आपका ऐसा कर्वेचर हो जाएगा जिधर से हवा बह रही उधर से। सो बिकॉज ऑफ दैट आपका मेजर डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि टेप आपका थोड़ा सा कर्वेचर में हो गया। सो मेजर डिस्टेंस आपका ज़्यादा भर रहा है एक्चुअल डिस्टेंस से। सो दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच द क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर ऑकर्स, यानी हर बार आपका डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस से ज़्यादा भर रहा, तो आपकी एरर हर बार पॉजिटिव है, हर बार पॉजिटिव, हर बार पॉजिटिव एरर है। और टोटल डिस्टेंस के अंदर फिर आपका जो डिस्टेंस का जो टोटल डिस्टेंस है उसके अंदर काफ़ी सारी एरर आ जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव एरर, बिकॉज विद द एवरी ऑपरेशन ऑफ द सिंगल चेन मेजरमेंट द एरर गेट्स एड ऑन, हर बार वो एरर बढ़ते जा रही है, और सेम रीजन से भी आ सकती है, अलग अलग रीजन से भी आ सकती है, लेकिन हर एक बार आपका मेजर डिस्टेंस ज़्यादा भर रहा एक्चुअल डिस्टेंस से। सो एवरी टाइम यूर एरर इज पॉजिटिव एरर, सो दैट इज द one important thing we have to remember. Now similarly there is chance that every time आपका distance भी थोड़ा कम भर सकता है. So there are some reasons where measured length is less than actual length, यानी distance है actually 30 मीटर का, लेकिन वो भर रहा है कम हमारा, because of there हो सकता है और कोई कारण हो. So that reasons are there. So cumulative negative error आ रही है इसके में, because मेजर डिस्टेंस आपका हर बार कम भर रहा है, हर बार थोड़ा थोड़ा कम भर रहा है. सो मेजर डिस्टेंस इज लेस देन एक्चुअल डिस्टेंस, सो देयर इज ए चांसेस ऑफ एरर, एंड दैट इज क्यूमुलेटिव निगेटिव एरर ऑकर्स. अब ये क्यूमुलेटिव बोले तो बढ़ते जाने वाली, लेकिन निगेटिव एरर है. व्हाट इज द रीजन? द चेन इज टू लॉन्ग बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड लेंथ, यानी आपकी जो चेन है, हालांकि चेन की लंबाई स्टैंडर्ड लंबाई हमारी कितनी होनी चाहिए? 30 मीटर, लेकिन फील्ड में बार बार हम लोग सर्वे करने समय उसको यूज कर रहे हैं, चेन को झटके लगा रहे हैं, स्टील के लिंक है उसके अंदर, तो उसके जो रिंग है वो रिंग भी थोड़े थोड़े खुल जाएंगे ऐसे, यानी जो गोल रिंग है ऐसी, वो गोल रिंग ऐसी थोड़ी सी लंबट हो जाएगी, या जो आपकी ऐसी जो लिंक है आपकी ऐसी वाली, ये लिंक का जो मुंह है थोड़ा सा खुल जाएगा. सो एवरी टाइम ये जो लिंक है इसकी लंबाई लिंक खुलने के वजह से, या जो गोल लिंक है वो ऐसी लंबी होने की वजह से थोड़ा थोड़ा करते करते टोटल चेन की लंबाई ही आपकी 30 मीटर के बजाय वो 30.07 भर रही है. सो चेन इज टू लॉन्ग, एक्चुअल 30 मीटर होना चाहिए, लेकिन हमारी चेन 30.07 मीटर की है. सो बिकॉज ऑफ दैट द एरर ऑकर, एंड दैट विल बी निगेटिव एरर, क्योंकि मेजर डिस्टेंस आपका हर बार कम भरेगा, मेजर डिस्टेंस आपका हर बार कम भरेगा, क्योंकि आप गिनेंगे 30.07 और उसको लिखेंगे 30 मीटर, यानी एक्चुअल डिस्टेंस 30.07 का गिना आपने और आप उसको बोल रहे 30 मीटर का. सो मेजर डिस्टेंस इज लेस देन एक्चुअल, सो देयरफॉर क्यूमुलेटिव निगेटिव एरर अकर्स. देन अनदर इज ओपनिंग ऑफ द रिंग जॉइंट्स. जैसा कि मैंने बताया, लिंक जो है उसके मुंह ऐसे खुल गए थोड़े थोड़े, तो उसके वजह से ओवरऑल लंबाई ज़्यादा भरेगी आपकी, 30.707 इस प्रकार से भर सकती है. देन पुल इज लेस दैन द स्टैंडर्ड पुल. अब आपका जो स्टैंडर्ड पुल है चेन को बराबर स्ट्रेट पकड़ने का, उससे थोड़ा कम पुल लगा रहे हम लोग,
यानी जो अपनी संखलिया है वो बराबर एक में को ऐसे अटक के नहीं रहेगी बराबर, वो थोड़ी सी ऐसी क्लोज रहेगी। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आप जो डिस्टेंस है उसके अंदर पुल स्टैंडर्ड न होने की वजह से भी आपके इसके अंदर गलती आ सकती है। देन देर इज ए टेम्परेचर इज मोर देन द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो जब हमारा चेन मैन्युफैक्चर किया हमने स्टील के अंदर, सो डायरेक्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड वी आर कॉलिंग इट एज द मैन्युफैक्चरिंग टेम्परेचर, और हम 43 डिग्री सेंटीग्रेड में अंदर काम कर रहे तो थर्मल एक्सपेंशन आ जाएगा उसके अंदर। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो टेम्परेचर इज मोर देन द स्टैंडर्ड। तो धूपकाले में आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर नहीं गिन रहे, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं गिन रहे इसका मतलब चेन की लंबाई ज़्यादा है और आप उसको बोल रहे कम। सो देयरफॉर नेगेटिव एरर ऑकर। So it every time negative error will occur. Then wearing of the connecting rings. अब ये जो रिंग है, ये रिंग का अब जैसा यहाँ पे मैं एनलार्ज व्यू निकालता हूँ उसको, सो ये ऐसी रिंग है समझ लो, इतनी मोटी वाली ऐसी। अब ये जो रिंग है, ये रिंग का डायमीटर है ये रॉड का 4 mm का, 4 mm के तार की वो रिंग बनी वाली होती है। अब ये 4 के बजाय घस के यहाँ पे ऐसा उसका डायमीटर पतला हो गया, सो यहाँ के डिस्टेंस आ गया, एरर आ गई उसके अंदर। तो जो रिंग एक में फंसी है उसका तार जो है वो थोड़ा सा घसने के वजह से वो डायमीटर कम हो गया उसका 4 mm के बजाय। तो ऐसा हर एक अलग अलग रिंग में होने के कारण से भी ओवरऑल लंबाई आपके चेन की बढ़ जाएंगी थोड़ी सी। तो 30 मीटर है तो 30 से 30.0305 ऐसा ही हो सकती है, क्योंकि हर इसमें मिलीमीटर का फर्क आते हैं, आधे मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का। तो रिंग घसने की वजह से भी एरर आती है। सो द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन इज टू लॉन्ग, दैट इज द रीजन। एंड द इलांगेशन ऑफ द लिंक्स, इलांगेशन ऑफ द लिंक्स बोले तो ये जो लिंक है ऐसी वाली अपनी ये वाली, ये थोड़ी सी लम जाएंगी, यानी उसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ है ओवरऑल एक्चुअली 30 सेंटीमीटर है समझ लो, तो वो 30.04 30.05 सेंटीमीटर, क्योंकि वो तार जो है वो खींचने से, झटके मारने से लम गया थोड़ा सा। सो दैट में ऑल्सो ऑकर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द चेन इज टू लॉन्ग देन द स्टैंडर्ड लेंथ। तो ऐसे चेन का इस्तेमाल करके यदि हम लोग डिस्टेंस गिन रहे हैं तो हर बार आपका डिस्टेंस जो है वो कम बढ़ेगा एक्चुअल डिस्टेंस से। सो बिकॉज ऑफ दैट cumulative negative error occurs. So all that you have to remember that because of all this reason, तो चेन की लंबाई ज़्यादा है तो क्यूमुलेटिव निगेटिव एरर, और चेन की लंबाई कम है तो क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर। दैट टू थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर। सो दिस वे you can compare and you can understand the various difference between the cumulative error and compensating error। अब ये जो एरर है ये चेन में अपने है कि नहीं है, ये अपने को चेक करना पड़ेगा वेन एवर यू आर यूजिंग द चेन इन द फील्ड। एंड तो चेन को पहले टेस्ट करना चाहिए हमने कि उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस बराबर 30 मीटर का है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो आपको स्ट्रेट प्लेन सरफेस लगेगा, प्लेन ग्राउंड लगेगा, बराबर लेवल ग्राउंड लगेगा, और लेवल ग्राउंड पे आपको चेन को फैला के उसके सभी रिंग को बराबर एग्जैक्टली पुल लगा के आपको उसको स्ट्रेच पकड़ के रखना पड़ेगा। उसके अंदर कोई सैग नहीं होना चाहिए, कोई लिंक्स आपकी ऐसी लूज नहीं रहनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी वेल, अलाइनमेंट उसकी स्ट्रेट होनी चाहिए। सो ऑल दैट यू हैव टू टेक केयर। लेकिन ऐसा आपको आइडियली मिलेगा नहीं। देयर आर ऑलवेज चांसेस दैट कि आपका चेन की लंबाई स्टैंडर्ड से कम होगी या स्टैंडर्ड से ज्यादा होगी। सो देयर आर चांसेस आर देयर, एंड दैट वे यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो हमको क्या करना चाहिए फिर, सो वी हैव टू लुक आफ्टर द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन। सो हियर हाउ द एडजस्टमेंट ऑफ चेन इज डन। सो रीजन इज हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि चेन मेरी ज्यादा लंबी है, थोड़ी सी टू लॉन्ग। टू लॉन्ग का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड लेंथ हमारी कितनी है 30 मीटर, और मेरी जो चेन है उसकी लंबाई बढ़ रही है 30.12 मीटर, 30.12, यानी मेरे चेन के अंदर 12 सेंटीमीटर का फर्क है, ज्यादा है लंबाई मेरी। सो चेन इज टू लॉन्ग। तो मेरा जो लॉन्ग है तो क्यूमुलेटिव निगेटिव एरर आएंगे मेरे इसके अंदर। सो फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, व्हाट एडजस्टमेंट आई विल रिक्वायर। तो चेन को मैंने ऐसा स्ट्रेट
ग्राउंड पे विदाउट सैग विथ स्टैंडर्ड पुल स्ट्रेट अलाइनमेंट में रखा और स्टील टेप से उसकी लंबाई गिना तो 30 मीटर भरनी चाहिए बराबर एग्जैक्ट। लेकिन वो यदि टू लॉन्ग भरती है, फॉर एग्जाम्पल 30.12 भर रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग ऑफ द जॉइंट्स, जो जॉइंट्स खुले वाले होंगे रिंग के, उसको चिपका के बराबर वेल्डिंग करके ओके करना पड़ेगा। तो जो भी डिस्टेंस बड़ा होगा वो थोड़ा 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 हर एक रिंग में एडजस्ट हो जाएगा। देन हैमरिंग द इलांगेटेड रिंग्स, कोई कोई लिंक ऐसी जो गोल वाली है वो ऐसी लांबट हो गई तो उसको ठोक के अपने को फिर सीधा गोल करना पड़ेगा। सो इलांगेटेड रिंग को आपको फिर से स्ट्रेट करना है। देन रिप्लेसिंग द ओल्ड रिंग, यदि पुरानी खराब हुई वाली वियर वाली रिंग होंगी, उसके अंदर की घसी वाली रिंग होंगी, तो वो रिंग निकाल के दूसरी वहां पे रिंग बराबर डाल दो वहां पे। देन रिमूविंग द सम रिंग्स, हो सकता है 30.12 ऐसा सब करने के बाद में वी हैव डन द क्लोजिंग ऑफ द जॉइंट, देन elongated rings we have made it round, then replacing of the old ring is also done, but even though there is a difference, तो सबसे आसान तरीका है कि एक लिंक ही निकाल डालो उसमें से, तो डायरेक्ट 2-3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। सो दैट मे बी द सोल्यूशन, वन ऑफ द सोल्यूशन। सो लाइक वे व्हेन द चेन लेंथ इज टू लॉन्ग वी हैव टू डू द एडजस्टमेंट लाइक दिस, and then you can avoid the cumulative negative error because chain length is more. So here the permitted error is 5 मिलीमीटर प्लस माइनस। तो आपका जो चेन की लंबाई टू लॉन्ग है तो 20 मीटर के टेप के अंदर 5 mm की एरर आपको अलाउड है, परमिसिबल। दिस इज परमिसिबल एरर इन द 20 मीटर चेन, परमिसिबल एरर। 20 मीटर के चेन में आपको 5 मिलीमीटर की एरर अलाउड है और 30 मीटर की जो चेन है उसके अंदर 8 मिलीमीटर की एरर आपको अलाउड है। सो दैट इज प्लस माइनस, रिमेंबर प्लस माइनस 8 mm। सो लाइक वे यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस केयर वी हैव टू टेक। अब यदि ये चेन की लंबाई ज्यादा है, यदि चेन की लंबाई यदि शॉर्ट पड़ गई तो सो आपकी जो चेन की रिंग है, चेन की लिंक है, वो लिंक ही टेढ़ी हो गई, यानी ऐसी जो स्ट्रेट लिंक है अपनी, वो जो क्या हो गया, ऐसी तिरछी हो गई, ऐसी बीच में से बेंड आ गया उसको, तो उसकी लंबाई कम हो जाएंगी। सो लाइक वे देयर आर सम रीजंस आर देयर, सो बिकॉज ऑफ दैट द चेन लेंथ इज टू शॉर्ट, यानी 30 मीटर की चेन भरनी चाहिए लेकिन वो 29.96 भर रही, तो शॉर्ट होगी चेन आपकी स्टैंडर्ड लेंथ से। सो बिकॉज ऑफ दैट क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर ऑकर। रिमेंबर, शॉर्ट है तो पॉजिटिव एरर आएगी और लॉन्ग है तो निगेटिव एरर आएगी, क्यूमुलेटिव निगेटिव एरर, यहाँ पे क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर आएगी। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये अवॉइड करने के लिए स्ट्रेटिंग द बेंट लिंक, ऐसी वाली जो बेंट लिंक हो गई होंगी तो उसको स्ट्रेट कर लो पहले सीधा ठोक के। देन ओपनिंग ऑफ द जॉइंट्स ऑफ द रिंग, कुछ कुछ जॉइंट की रिंग खोलना है तो उसको थोड़ा थोड़ा खोल भी सकते क्योंकि आपको लंबाई बढ़ाना है, इसकी 30 मीटर करना है, या फिर ओल्ड रिंग को रिप्लेस कर दो। और देन इंसर्ट द न्यू रिंग, एक आधी न्यू डालना है, एक आधी गोल्ड रिंग तो ऐड कर दो उसके अंदर, ताकि लंबाई आपकी 30 मीटर भर जाए बराबर एग्जैक्टली। सो लाइक वे वेन एवर देर इज ए टू लॉन्ग लेंथ ऑफ द चेन और टू शॉर्ट, वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन एंड वी हैव टू ट्राई टू एडजस्ट द लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन। यदि आप स्टैंडर्ड लेंथ इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपके मेजरमेंट में फर्क आएगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग while eliminating the errors in the linear measurement. So we have to understand how this correction is then done. अब यदि एरर तो आ रही है, इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, इतने सारे रीजन हमने देखे कि चेन के अंदर से मेजरमेंट करते समय आपको कोई ना कोई एरर आने वाली है। सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर मेकिंग द करेक्शन? सो हियर द इनकरेक्ट लेंथ करेक्शन आपको कैसे करना है ये देखो। आपकी जो चेन है उसकी स्टैंडर्ड लेंथ करेक्ट नहीं है, यानी 30 मीटर के बजाय कम है या फिर ज्यादा है, टू शॉर्ट और टू लॉन्ग, यानी 30 मीटर नहीं है लेकिन टू शॉर्ट है तो क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर आएगी और टू लॉन्ग है तो क्यूमुलेटिव निगेटिव एरर आएगी। सो लाइक वे, सो हियर यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज ट्रू लेंथ इज इक्वल टू L डैश अपॉन L इंटू मेजर्ड लेंथ। सो दैट इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, true length is equal to L dash upon L
इंटू मेजर्ड लेंथ। मेजर्ड लेंथ का मतलब जितना भी डिस्टेंस आपने गिना उतने डिस्टेंस को आपको एल डैश अपॉन एल से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ट्रू लेंथ निकल जाएगी, ट्रू डिस्टेंस निकलेगा। सो ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू मेजर डिस्टेंस। दैट फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर। नाउ हियर व्हाट इज एल डैश? तो एल क्या है हमारा? सो एल इज द ट्रू लेंथ ऑफ द चेन, एल इज द ट्रू लेंथ ऑफ द चेन, यानी आपकी चेन की लंबाई 30 मीटर और 20 मीटर, तो एल हो जाएगा आपका 20 मीटर या एल हो जाएगा 30 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर, सो दैट विल बी एल। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी लेंथ एग्जैक्ट 30 मीटर या एग्जैक्ट 20 मीटर की होगी, सो देयर इज एरर। तो एल डैश जो है ये इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन है, यानी 30 मीटर की चेन 30.07 भर रही या 20 मीटर की चेन 19.91 भर रही। सो दिस इज द इनकरेक्ट लेंथ, यानी गलत चेन की जो लंबाई है दैट वी विल कॉल इट एज एल डैश, एंड करेक्ट और स्टैंडर्ड लेंथ इज एल। सो इन द फार्मूला यू हैव टू एल डैश अपॉन एल से मल्टीप्लाई करना है मेजर डिस्टेंस को, सो देन यू विल गेट द ट्रू लेंथ और ट्रू डिस्टेंस पर्टिकुलरली। नाउ विथ दिस ट्रू डिस्टेंस, सो दैट एल डैश, हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट एल डैश? सो एल डैश इज एल प्लस माइनस एरर, यानी यहां पर आप देखेंगे, सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड। सो इन दिस केस सपोज ट्रू लेंथ आपकी जो है वो 30.07 है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल डैश, और एल कितना है आपका? एल है 30 मीटर, तो आपको एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस ई, यानी 30 प्लस 07, तो फिर आपका 30.07 आएगा, यानी यहां पे आपकी एरर क्या है? पॉजिटिव है, यहां पे एरर आपकी पॉजिटिव है। सो बिकॉज देयरफॉर आपका डिस्टेंस 30.07 आ गया। यदि ये एरर निगेटिव है तो आपका डिस्टेंस 30 माइनस 0.04 ऐसा रहता था, तो आपका एल डैश जो है वो यहाँ पे रहता था 29.96, यानी एल डैश आपका कम है यहाँ पे स्टैंडर्ड लेंथ से। सो लाइक वे द एरर में बी पॉजिटिव और निगेटिव, उसके हिसाब से आपका पॉजिटिव कब रहेगा? व्हेन द चेन लेंथ इज टू लॉन्ग, चेन की लंबाई ज्यादा है तो एरर पॉजिटिव रहेगी, एंड द चेन लेंथ इज टू शॉर्ट तो निगेटिव एरर रहेगी। सो दैट वे वी हैव टू रिमेंबर positive error when too long, negative error when too short, and accordingly you can decide this sign। तो आपको L dash that is the incorrect length of the chain ये आप निकाल सकते हो, या आपको L dash मालूम है तो आप L मालूम है आपको तो एरर निकाल सकते हो। So alternatively you can use this formula। So here you have to remember the two formula, one is L dash is equal to L plus minus E, यानी incorrect length of the chain is equal to standard length plus minus error। So error is plus when there is too long and error is minus when there is too short length। And when you calculate true distance, so true distance is equal to L dash upon L into measure distance, true distance is equal to L dash upon L into measure distance। So like way this formula we have to remember, and इसी प्रकार से हम लोग फिर यहाँ से true area is equal to L dash upon L into measured area ये भी हम लोग कर सकते हैं। So in this way we can apply the correction in the measurement of the true distance। So we will understand this by solving one of the problem। So here one problem is given that we will solve, and then you will understand how this correct or error is eliminated or how the correct distance is calculated। So here the problem is given, the distance between the 2 points measured with a 20 meter chain was recorded as 529 meter। It was afterward found that the chain was 3 centimeter too long, and what was the true distance between the point? So this is the problem given। So first of all we will write down the given data for this problem and then we will solve।
So here we will write down the given data. So in the given data, the distance between the 2 point measured is with a 20 meter chain. यानी standard length of the chain हमारी कितनी है 20 मीटर. So here you can say that standard length L is equal to 20 मीटर. चेन की स्टैंडर्ड लंबाई 20 मीटर है हमारी को, दैट इज गिवन. रिकॉर्डेड वाज 529 मीटर, यानी मेजर डिस्टेंस कितना है 529 मीटर. सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 529 मीटर, दैट इज मेजर्ड डिस्टेंस. सो मेजर डिस्टेंस हमने गिन लिया 529 मीटर का. Then it was found that the chain was 3 सेंटीमीटर too long. तो चेन की लंबाई 3 सेंटीमीटर ज्यादा है. So what is the error? So error is plus 3 सेंटीमीटर because too long. तो एरर का साइन यहाँ पे प्लस होगा. 3 सेंटीमीटर का मतलब हो गया यहाँ पे ये 3 डिवाइडेड बाय 100. So it is plus 0.03 मीटर. So error is plus 0.03 मीटर because चेन की लंबाई अपनी 3 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है. So error is plus. Now from this it is said that what was the true distance. आपको निकालना है true distance. True distance we have to calculate. So here you can write down true distance is equal to question mark. So here for true distance, the formula we have to know. So true distance is equal to L dash upon L into measure distance. ये फार्मूला है हमारा. अब ये फार्मूले में हमको L डैश निकालना है पहले. सो L डैश का फार्मूला हमको मालूम है, L डैश इज इक्वल टू L प्लस ई करना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी ऑब्वियसली ई प्लस है हमारा यहाँ पे. तो L डैश कितना होगा यहाँ पे, L है हमारा 20 मीटर. स्टैंडर्ड लेंथ इज 20 मीटर. सो L 20 मीटर है प्लस एरर कितनी है हमारी 0.03. सो ये हो गया 20.03 मीटर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ L डैश. अभी L डैश आपको मालूम है, L आपको मालूम है 20 मीटर, मेजर डिस्टेंस 529 मीटर दिया है. तो एक्चुअल ट्रू डिस्टेंस हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं. सो यू कैन राइट डाउन दैट ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू L डैश अपॉन L. L डैश कितना है हमारा 20.03 डिवाइडेड बाय L कितना है 20 and into we can carry out measure distance. That measure distance is 529 meter. So we can solve this. So we will get the value. So 20.03 divided by 20 into 529. So we will get 529.7935 meter. So that is true distance. So this is our answer. So like way हम लोग हमारा इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन मालूम है, ट्रू लेंथ मालूम है, एरर मालूम है, तो ट्रू डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते. सो एक्चुअली मेजर डिस्टेंस हमारा 529 मीटर आ गया, लेकिन एक्चुअल में हमारा डिस्टेंस ट्रू डिस्टेंस कितना है 529.7935. सो दैट वे वी कैन कैलकुलेट द ट्रू डिस्टेंस. Another problem we will take, similar type of another problem we will take. So here in the another problem it was given that the distance between the two station was 1200 meter. दो स्टेशन का डिस्टेंस हमने गिना वो है 1200 मीटर का. When measured with 20 मीटर चेन, चेन हमने कौन सी इस्तेमाल की 20 मीटर वाली. So standard length of the chain is then 20 meter. Now the same distance when measured with a 30 meter chain, वही डिस्टेंस हमने 30 मीटर के चेन से गिना, was found to be 1195. यानी 30 मीटर की चेन इस्तेमाल की तो वो डिस्टेंस हमारा 1195 मीटर भर गया. सो इफ द 20 मीटर चेन was 0.05 मीटर टू लॉन्ग, देन व्हाट वाज द एरर इन 30 मीटर चेन. तो
20 मीटर के चेन के अंदर 0.05 मीटर की लंबाई ज़्यादा है, तो 30 मीटर वाले एरर में एरर कितनी रहेगी? सो दैट वी हैव टू कैलकुलेट. So we will solve this problem, but here in this problem we have to remember that there are two cases are given. So two part we will make here. दो पार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे. सो पहले वाले में डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन वाज 1200 मीटर. सो हियर यू कैन से दैट डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 1200 मीटर वेन द मेजर्ड विद द चेन ऑफ 20 मीटर. तो यहां पे स्टैंडर्ड लेंथ चेन की है 20 मीटर. सो यू कैन से दैट स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन, ये L इज इक्वल टू 20 मीटर है. द सेम डिस्टेंस वेन मेजर्ड विथ 30 मीटर चेन, यानी इधर वाले केस में L इज इक्वल टू कितना है? 30 मीटर. सो दैट डिस्टेंस इज फाउंड टू बी 1195 मीटर. तो यहाँ पे मेजर डिस्टेंस जो है ए बी, ये हो गया आपका 1195 मीटर. दैट इज गिवन. नाउ इफ 20 मीटर चेन वाज 0.05 मीटर टू लॉन्ग, यानी ये 20 मीटर वाले चेन में एरर कितनी है? एरर है प्लस 0.05 मीटर, क्योंकि ये है टू लॉन्ग, चेन की लंबाई ज्यादा है, तो एरर प्लस आएगी आपकी. E इज इक्वल टू. सो व्हाट वाज द एरर इन 30 मीटर चेन? तो 30 मीटर वाले चेन में एरर कितनी है, ये हमको निकालना है. दैट इज द प्रॉब्लम. तो एक डिस्टेंस 20 मीटर के चेन से गिना तो वो 1200 मीटर भर गया, और वही डिस्टेंस 30 मीटर के चेन से गिना तो 1195 भर गया. यदि 20 मीटर वाले चेन में 0.05 मीटर की एरर है, तो 30 मीटर वाले चेन में कितनी एरर रहेगी? सो ये हमको निकालना है. सो इन बोथ द केसेस फर्स्ट वी विल कैलकुलेट L डैश. तो L डैश इज इक्वल टू होता है L प्लस ई. तो यहां पर L प्लस ई के अंदर L डैश, L कितना है? सो हियर वी विल राइट डाउन लिटिल बिट हियर. सो L डैश इज इक्वल टू L प्लस ई, यानी इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन. तो ये वाले केस में हो जाएगा वो 20 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 20.05 मीटर. तो ये वाले केस में आपका L डैश हो जाएगा 20.05 मीटर. यहां पर L डैश कितना होगा? सो L डैश इज इक्वल टू 30 प्लस ई हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अपने को ई की वैल्यू दी नहीं है. सो दैट वी विल रिमेंबर हियर L डैश इज इक्वल टू 30 प्लस ई. अब हमको फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग ट्रू डिस्टेंस का. नाउ वी नो द डिस्टेंस फार्मूला, ट्रू डिस्टेंस का फार्मूला. सो वी विल राइट डाउन द फार्मूला फॉर ट्रू डिस्टेंस. सो ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू L डैश अपॉन L इंटू मेजर डिस्टेंस. अब ये फार्मूले में यदि वैल्यू रखना है तो ये पहले केस के लिए वैल्यू रखते हैं हम लोग. तो यहां पे ट्रू डिस्टेंस क्या है निकालना है आपको. तो ट्रू डिस्टेंस आप निकालो यहां पे. सो डिस्टेंस ए बी ट्रू वाला इज इक्वल टू L डैश. L डैश कितना है यहां पे? 20.05 डिवाइडेड बाय L बोलो तो 20 मीटर, और मेजर डिस्टेंस कितना है यहां पे? पहले वाले केस में 1200. तो 1200 मीटर का डिस्टेंस का यदि करेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1200 इंटू 20.05 एंड डिवाइडेड बाय 20. तो ये हो गया 1203 मीटर. तो ट्रू डिस्टेंस 1203 मीटर आ गया. ट्रू डिस्टेंस कितना आ गया हमारा? 1203. अब यही फार्मूला इधर लगाते हैं हम लोग. तो यहाँ पे ट्रू डिस्टेंस हमको, ये केस में ट्रू डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, लेकिन ट्रू डिस्टेंस हमने निकाला ना, भी यहाँ पे कैलकुलेट किया ना 1203. तो यहाँ पर हम लोग ट्रू डिस्टेंस रख सकते 1203 इज इक्वल टू L डैश. L डैश की वैल्यू हमारी यहाँ पर है 30 प्लस ई और डिवाइडेड बाय L. L का मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है? 30 मीटर. और मेजर डिस्टेंस बोले तो यहाँ पे हमने 1195. तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. सो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 30 प्लस ई
इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1203 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1195। तो ये वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे। सो 1203 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1195, सो इट इज 30.20। तो यहाँ पे L 30 प्लस E की वैल्यू आ गई 30.20। तो E कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू 30.20 माइनस 30, Na इज इक्वल टू आ गया प्लस 0.20 मीटर। सो दिस इज द आंसर कि यहाँ पे 30 मीटर के चेन में 0.20 मीटर की एरर रहेगी। सो लाइक वे, एक चेन में एरर इतनी थी, दूसरे चेन में एरर कितनी है, ये हमने यहाँ पर निकाल ली। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम मे बी देयर एंड यू कैन कैलकुलेट द ट्रू डिस्टेंस बाय विद द हेल्प ऑफ दिस formula. So another one simple additional problem we will take and then we will stop for this lesson. So another problem here, it is given a line was measured by 20 meter chain. So simultaneously we can write down the data which was accurate before starting the day's work. यानी काम शुरू करने के पहले लंबाई एक्यूरेट थी अपनी बराबर और स्टैंडर्ड लेंथ है 20 मीटर की। एंड आफ्टर चेनिंग 900 मीटर चेन was found to be 6 मीटर टू लॉन्ग, यानी 900 मीटर का डिस्टेंस गिनने के बाद में हमारे चेन के अंदर एरर आ गई 0.6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, इतनी एरर आ गई। देन आफ्टर चेनिंग द टोटल डिस्टेंस ऑफ 1575 मीटर, चेन वॉज फाउंड टू बी 14 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, यानी टोटल डिस्टेंस 1575 मीटर का गिनने के बाद में चेन के अंदर 14 सेंटीमीटर की एरर आपको पता चल गई। तो ऐसे केस में फिर फाइंड द ट्रू डिस्टेंस ऑफ द लाइन। तो लाइन का ट्रू डिस्टेंस निकालना है, आंसर इतना दिया है, बट वी विल सॉल्व दिस नाउ। सो एक्चुअली व्हाट हैपन नाउ इन दिस केस, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। कि यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक का डिस्टेंस गिना, उसके आगे भी डिस्टेंस गिना। एक्चुअली टोटल डिस्टेंस हमारा दिया है यहाँ पर 1575 मीटर। जीरो से हमने स्टार्ट किया, 0 मीटर से जब स्टार्ट किया तो 900 मीटर तक का हमने जब गिना, 900 मीटर, तो वहां पे 900 मीटर के बाद में आपको एरर आ गई 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, यानी यहां पर प्लस 0.06 की एरर आ गई। यहां पर 0.06 की एरर आ गई हमारे यहां से, जबकि स्टार्टिंग में एरर कितनी थी यहाँ पे 0.00, यहां पर एरर कुछ भी नहीं थी चेन के अंदर। सो दिस इज एरर। तो शुरू में एरर 0 थी, 900 मीटर गिनने के बाद में प्लस 0.06 आ गई, और यहां पर दिया है आखिरी में 1575 मीटर चेन के बाद में 14 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, यानी यहां पर आ गई एरर आपकी प्लस 0.14, यानी 14 सेंटीमीटर की एरर आ गई। सो दिस इज द सिचुएशन गिवन। अब यहां पे ये करते समय हमको पूछा है कि फाइंड द ट्रू डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस करेक्ट वाला कितना है। तो करेक्ट वाला डिस्टेंस निकालने के लिए पहले ये वाला 900 मीटर का डिस्टेंस कितना करेक्ट है वो निकालना पड़ेगा, फिर बचे वाला डिस्टेंस कितना करेक्ट है वो निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों का ऐड करके टोटल ट्रू डिस्टेंस निकलेगा अपना। अब एक्चुअल में यहां पर ये डिस्टेंस कितना है, मेजर डिस्टेंस है यहां पर 900, और यहां पे मेजर डिस्टेंस कितना है, सो दैट इज 675, यानी दोनों मिला के हो जाएगा 1575। सो दैट वाज द, यानी अब हमको यहां पर 2 बार प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, यहां का ट्रू डिस्टेंस और यहां का ट्रू डिस्टेंस। अब इसमें समझने वाली एरर यहां है कि इनिशियल एरर 0 है, फाइनल एरर 0.06 है, तो ये वाले स्पैन के लिए एवरेज एरर लेनी पड़ेगी आपको। सो एवरेज एरर कितनी हो जाएगी यहां पर फिर, सो हियर एवरेज एरर दैट इज 0 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.0, एरर इज इक्वल टू 0.03। इस ये वाले स्पैन के लिए एरर 0.03 हो जाएगी प्लस,
एक्चुअली प्लस ही है यहाँ पर ये। नाउ दूसरे वाले स्पैन के लिए इनिशियल एरर 0.06 है और फाइनल एरर 0.14 है, तो एवरेज एरर कितनी हो गई यहाँ पे? सो हियर एरर आई कैन कैलकुलेट एरर इज इक्वल टू 0.06 प्लस 0.14 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट विल बी 14 और 6 20 यानी 0.10 प्लस है यहाँ पर भी। सो इस वाले केस में एरर 0.10 है, इस वाले केस में एरर 0.03 है। नाउ हियर चेन की लंबाई कितनी थी हमारे पास? 20 मीटर। सो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द चेन इज गिवन, सो एल इज इक्वल टू 20 मीटर, दैट इज गिवन। अब एल डैश कितना है? तो यहां पे एल डैश हमारा हो जाएगा एल डैश, ये हो जाएगा एरर प्लस है हमारी, तो 20 प्लस 03, सो 20.03 मीटर हो जाएगा यहाँ पे इस केस में एल डैश। लेकिन ये जो स्पैन है, ये वाले स्पैन के लिए एल डैश हो जाएगा 20.10, यानी यहाँ पर प्लस 0.10 की एरर है। टू लॉन्ग, हियर ऑल्सो टू लॉन्ग, हियर इज ऑल्सो टू लॉन्ग। सो हियर इन दिस केस पहले वाले स्पैन के लिए एल डैश 20.03 मीटर आएगा, दूसरे वाले स्पैन के लिए एल डैश 20.10 आएगा। अब यहां पे ट्रू डिस्टेंस निकालते पहले स्पैन के लिए, फिर दूसरे स्पैन के लिए ट्रू डिस्टेंस निकालते और दोनों को ऐड करके फिर हमारा एक्चुअल डिस्टेंस निकलेगा। सो फॉर स्पैन 1 के लिए ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी यहां पर समझ लो ए और बी और यहां पर सी, तो पहले डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं स्पैन 1 ए बी के लिए। तो ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा? एल डैश अपॉन एल इंटू मेजर्ड लेंथ। सो एल डैश अपॉन एल इंटू मेजर्ड लेंथ, एल डैश अपॉन एल इंटू मेजर्ड लेंथ। तो यहां पर हम लोग एल डैश निकालेंगे अभी यहां पे सीधा सीधा। तो पहले वाले केस के लिए एल डैश कितना है? 20.03 डिवाइडेड बाय 20, यानी एल डैश 20.03 आ गया, एल आ गया 20, और इसके लिए डिस्टेंस कितना गिना था आपने? 900 मीटर का। तो पहले स्पैन के लिए हमारा ट्रू डिस्टेंस निकल जाएगा यहाँ पे। सो 900 इंटू 20.03 डिवाइडेड बाय 20, सो यू विल गेट 901.35 मीटर। ये पहला स्पैन का ट्रू डिस्टेंस हमारा निकल गया। इसी प्रकार से दूसरा स्पैन है स्पैन 2 के लिए डिस्टेंस BC ये निकालना है। सो ट्रू डिस्टेंस का फार्मूला एल डैश अपॉन एल, एल डैश कितना है यहाँ पे? 20.10, सो 20.10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू मेजर्ड लेंथ है 675 मीटर, so that is 675 is equal to, so you will get 20.10 divided by 20 into 675 and that is 678.375। तो ये दूसरा डिस्टेंस हो गया और टोटल ट्रू डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। टोटल ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों की टोटल, यानी 901.35 प्लस 678.375 and that will comes out to be plus 901.35 and that is 1579.725 meter and that is the correct answer of this problem। तो हमने पहले वाले स्पैन के लिए एल डैश निकाला, फिर दूसरे वाले स्पैन के लिए एल डैश निकाला। पहले स्पैन के लिए एरर हमने एवरेज की, दूसरे स्पैन के लिए भी एरर हमने एवरेज की एंड अकॉर्डिंगली एल डैश वी हैव कैलकुलेटेड, और ये एल डैश में से फिर पहले स्पैन के लिए ट्रू डिस्टेंस निकाला जो आ गया हमारा 901.35, फिर दूसरे स्पैन के लिए ट्रू डिस्टेंस निकाला जो आ गया 678.35। तो टोटल ट्रू डिस्टेंस हमारा 1579.725 आ जाएगा। यानी इस प्रकार से यदि हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो ट्रू डिस्टेंस आपका 1579.725 रहेगा। सो हियर डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट whenever we are doing the linear measurement, we have to understand the nature of error
and then we have to apply the correction into that, and then only the correct true distance or true length that we can calculate. So in that way, with this problem you have understood that how the correct distance is calculated. So in this lesson 3 we have seen the errors in the linear measurement, that is compensating error, cumulative positive error and cumulative negative error we have seen. Then we have also understood the difference between them, and then personal errors, how we can avoid, that also we have seen, and then we have solved the problem on the chain correction. So in the next lesson we will go beyond again this. So टेम्परेचर करेक्शन कैसे निकालना है, स्लोप करेक्शन कैसे निकालना है, सैग करेक्शन कैसे निकालना है, पुल करेक्शन कैसे निकालना है. So on that basis also we will see some formulae and we will try to solve some of the problem. So till then, for this lecture I will stop here. Goodbye and thank you for watching this lecture. Thank you.